பிரைஸ் லார்ட். जय मसीह की। எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? सब लोग ठीक हो आप? இந்த யூடியூப்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். मैं इस YouTube के लिए धन्यवाद करती हूँ ஏன்னா இப்போ தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம் எல்லாரும். क्योंकि अब ये लॉकडाउन के समय में हम सब लोग अलग अलग किए गए हैं, ஆனால் இந்த யூடியூப் மூலமாக எல்லாரையும் சந்திக்கிறோம். लेकिन इस YouTube के द्वारा हम सब मुलाकात कर रहे हैं। இந்த டெக்னிக்குக்காக கடவுளுக்கு நன்றி. ये जरिया के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ ஏன்னா புத்தி ஞானமெல்லாம் ஆண்டவர்கிட்ட தான் மனுஷன் பெற்றுக்கொள்கிறான். क्योंकि बुद्धि ज्ञान मनुष्य परमेश्वर की ओर से ही प्राप्त करता है। நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, आज हम क्या देखने वाले हैं? நம்ம வந்து அமைதியாக ஜீவனம் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? हम हमारे जीवन में शांति का एक जीवन बिताने के लिए हमें क्या करना है? எல்லாருக்கும் அமைதியாக சாந்தியாக சமாதானமாக இருக்கிறது பிடிக்கும் தானே? सब लोगों को अपना जीवन शांतिमय हो यही प्रिय है ना? அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? इसके लिए हमें क्या करना है? ஆண்டவர் வந்து நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமா இருக்கிறேன்னு சொன்னார். परमेश्वर ने कहा कि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूँ। எல்லாத்துக்கும் வழியை வந்து பைபிளில் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார். हर चीज के मार्ग को परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र में सिखाया है। நம்ம வசனத்துக்குள்ளே இப்போ போகலாமா? आइए हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन में जाए। நம்ம வசனத்தை வந்து கவனமாக கேட்கணும். हमें परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से हमें सुनना है, ஏன்னா நம்ம சரீரத்தில் ஏதாவது வேலை செய்யணும்னா செஞ்சுருவோம். क्योंकि हम शरीर से कुछ काम करना है तो हम कर लेंगे। 10 நாள் 10 दिन 10 மைல் நடக்கணும், हमें 10 दिन में 10 मील चलना है, சாப்பிடாம இருக்கணும், हमें खाए बगैर रहना है। அப்படிலாம் சொல்லும்போது அதை நம்ம பண்ணிடுவோம், ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. क्योंकि यदि हमें उसके द्वारा हमें आशीष मिलता है तो वो सब हम कर बैठेंगे। இயேசு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே வேணாம், परमेश्वर ने कहा ये सब की जरूरत नहीं है, விசுவாசம் தான் வேணும். केवल विश्वास की जरूरत है। விசுவாசம் இந்த வசனத்தின் மூலமா தான் நமக்கு கிடைக்கும். ये विश्वास जो है परमेश्वर बात कर रहे हैं वो वचन ही के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। இயேசு ஒரு தரம் சொல்லி கொடுத்தாரு, மாம்சம் எதுக்குமே உதவாது. यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र में एक बार कहा है कि शरीर किसी भी चीज में मनुष्य की सहायता नहीं कर सकता, ஆவிதான் உயிர்ப்பிக்கிறது. केवल उसके अंदर जो आत्मा है वो ही उसे जिलाता है। நான் உங்களுக்கு சொல்ற வசனங்கள், मैं जो आपको वचन बोलता हूँ அது ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்குது. वो आत्मा भी है और वो जीवन भी है। அப்ப நம்ம ஆத்மாவை உயிர்ப்பிச்சா நம்ம ஜீவன் வந்து நல்லா ஆயிடும் இல்லைங்களா? सो हम यदि हमारे आत्मा को जिलाएंगे तो हमारा जीवन कितना अच्छा होगा। வசனத்தை வந்து நம்ம கவனமா கேட்கணும். इसी के लिए हमें वचन को बड़े ध्यान से सुनना है। 1 தீமோத்தேயு पहले तीमोथीस 1-4 पहले तीमोथीस दूसरे अध्याय में 1 से लेकर 4 इस वचन को हम पढ़ेंगे। நான் பிரதானமாய் சொல்லுகிற புத்தி என்ன என்றால், எல்லா மனுஷருக்காகவும் விண்ணப்பங்களையும் ஜெபங்களையும் வேண்டுதல்களையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் பண்ண வேண்டும். நாம் எல்லா பக்தியோடும் நல்ல ஒழுக்கத்தோடும் கலகமில்லாமல் அமைதலுள்ள ஜீவனம் பண்ணும்படிக்கு ராஜாக்களுக்காகவும் அதிகாரமுள்ள யாவருக்காகவும் அப்படியே செய்ய வேண்டும். நம்முடைய இரட்சகராகிய தேவனுக்கு முன்பாக அது நன்மையும் பிரியமாய் இருக்கிறது. எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படவும் सत्यते அறிகிற அறிவை அறியவும் அவர் சித்தமுள்ளவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर का वचन कहता है कि अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। நம்ம ரொம்ப ஒரு ஃபாஸ்ட் வேர்ல்ட்ல இப்போ உலகத்துல நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். हम ये जिस युग में हम जो जी रहे हैं ये बड़ी तेज युग है। ये அவங்கவுங்க லக்க நோக்கி ஓடிட்டு இருக்காங்க. सब लोग अपने अपने उद्देश्य को देखते हुए वो दौड़ रहे हैं। அப்ப அடுத்தவங்களை
வந்து கேர் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். तो इस तेज से भरा हुआ इस संसार में एक दूसरे की चिंता करना ये बड़ा मुश्किल बात है। சில நேரம் நம்ம பிள்ளைங்களாலேயே நம்மளுக்கு டென்ஷன் வருது. हो सकता है कि कभी कभार हम अपने बच्चों के ही द्वारा समस्या में आ जाते हैं या चिंतित हो जाते हैं। கணவனுக்கு மனைவியால, हो सकता है कि पति को पत्नी के द्वारा மனைவிக்கு கணவனால या पत्नी को पति के द्वारा நிறைய கஷ்டங்கள் டென்ஷன் வருது. बहुत से समस्या परेशानियां आती है। இது எதுவுமே இல்லைன்னா ये अगर कुछ भी नहीं होगा பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க, तो हो सकता है कि पड़ोसी के द्वारा தெரிஞ்சவங்க या पहचान वालों के द्वारा நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க. हमें परेशान करेंगे, ஏன்னா நம்ம அப்படிப்பட்ட உலகத்துல தான் வாழ்றோம். क्योंकि हम इस प्रकार के संसार में जी रहे हैं। ஆனா ஆண்டவர் வந்து அதுலயும் ஒரு வழியை வச்சிருக்கிறார். लेकिन परमेश्वर ने इस जगत में भी एक मार्ग को रखा हुआ है। அமைதியா ஜீவனம் பண்ணணும்னா शांतिमय जीवन को जीने के लिए ராஜாக்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. हमें राजाओं के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। அப்புறம் அதிகாரம் உள்ள யாருக்கும் பண்ணுங்க. अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। வேலைக்கு போறவங்க, जो काम करते हैं उनके लिए, அவங்க நம்மளுடைய மேனேஜர்ஸ்க்காக, அதிகாரிகளுக்காக ஜெபம் பண்ணணுமா. सो जो काम करते हैं जहाँ पे काम आप कर रहे हो वहाँ के अधिकारियों के लिए, आपके मैनेजर्स के लिए हमें प्रार्थना करना है। நம்மளுக்கு சம்பளம் கொடுக்கறவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணணும். हमें जो तनख्वाह देते हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। நம்ம தேசத்தை ஆள்றவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணணும். हम इस देश को जो चला रहे उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। நம்ம இது பண்றோமா? क्या हम ये काम करते हैं? நம்ம இது பண்ணாலே நம்மளுடைய ஜீவனம் அமைதியா இருக்கும். ये यदि हम करेंगे तो हमारा जीवन परमेश्वर कहता है कि शांतिमय होगा। நம்ம எல்லாருக்கும் ஜெபம் பண்றது ஆண்டவருக்கு ரொம்ப இஷ்டமா இருக்கும். परमेश्वर चाहता है कि हम सबके लिए प्रार्थना करें। நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம வந்து ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட உடனே நம்ம வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுக்கிறது ஜெபம். பழைய வாழ்க்கையில இது கிடையாது. सो हम जब ही जैसे ही हमने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो सबसे प्रथम हमको प्रार्थना करने को सिखाता है, जो हमारे पुराने जीवन में नहीं होता है। நான் வந்து பிரார்த்தனைன்னா நான் என்ன நினைச்சுப்பேன் தெரியுமா? अब अगर मैं प्रार्थना का नाम लिया जाए तो मैं प्रार्थना अगर मैं कहूँ तो मैं क्या सोचती थी जानते हो? உங்களுக்குலாம் தெரியும், ஒரு அப்பாவும் சின்ன பிள்ளையும் விளையாடுறத நிறைய இடங்கள்ல பார்த்துருப்பீங்க. सो आप लोगों को मालूम है कि एक पिता और बच्चा बहुत से जगह पे खेलते हुए आप देखते होंगे। நீங்களே விளையாடி இருப்பீங்க. हो सकता है कि आप भी स्वयं खेलते हुए होंगे। அப்பா கையை மூடிட்டு உட்காருவாரு. पिता जो है अपने मुट्ठी को बंद करके बैठता है குழந்தை வந்து ஒவ்வொரு விரலா திறக்கும். और बच्चा जो है वो एक उंगलियों को खोलता है। அப்பா கையில ஏதாவது வச்சிருக்காரான்னு. क्या बच्चा इसी के लिए खोलता है कि क्या पिता ने कुछ अपने मुट्ठी में छुपा के रखा है क्या? கஷ்டப்பட்டு திறக்கும். वो बड़े कठिनाई से खोलता है। அப்பாவுக்கும் அந்த பிள்ளையோட விளையாடணும்னு ரொம்ப ஆசை. पिता को भी अपने बच्चे के साथ में खेलने की बहुत इच्छा है। அப்போ அப்பா என்ன பண்ணுவாரு, இருக்க முடிப்பார். सो पिता क्या करेंगे, वो अपनी मुट्ठी को एकदम जोर से दबाएंगे। பையன் கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு திறப்பாங்க. वो और बच्चा जो है वो बड़े कठिनाई से एक उंगली खोलता है। கையை திறந்தாக்க अगर बच्चा खोलेगा, ஒண்ணும் இல்லைன்னா अगर कुछ नहीं होगा, பையன் ஏமாந்து போயிடுவான். सो बच्चा जो है वो एकदम ऐसा लगता है कि उसे मतलब फंसा दिया। ஆனா அப்பாவுக்கு மனசே கேட்காது. लेकिन पिता को जो है वो मन ही नहीं आता है। அப்பா என்ன பண்ணுவாரு, पिता क्या करेंगे, பையன் ஏமாந்து போயிடக்கூடாது. पिता क्या करेगा कि भाई बच्चा को कभी हम ना फंसाए। கட்டாயம் ஏதாவது வாங்கி கொடுப்பாரு பையனுக்கு. सचमुच में बच्चे को कुछ ना कुछ वो लेके देता है। பையனுக்கு வந்து ஏமாந்து போக கூடாது, சந்தோஷமா இருக்கணும். पिता की यही हार्दिक इच्छा है कि उसका बच्चा जो है वो पिता की ओर से जो भी प्राप्त करना है वो फंसे नहीं, उस जो भी चाहता है वो मिले उसे। ஆண்டவர் வந்து परमेश्वर சொல்றாரு, यही कहता है, கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும், परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, தட்டுங்கள் திறக்கப்படும்,
खटखटाओ तो खोला जाएगा, தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள். ढूंढो तो तुम पाओगे. இன்னொரு வசனம் பார்க்கலாம். एक और वचन को देखेंगे. மத்தேயு 5:44-45. मत्ती की किताब में 5वें अध्याय का 44 और 45 वचन को हम पढ़ेंगे. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है. நம்ம வந்து எந்த லெவலுக்கு வளர்ந்துருக்கோம்னா நம்ம யாரையும் சபிக்க மாட்டோம் அவ்வளவு சீக்கிரம். हम हमारी जो परवरिश है वो इस प्रकार है कि हम इतने आसान से या जल्दी से हम किसी को श्रापित नहीं करते. ஆனா ஒன்னே ஒன்று நினைச்சுப்போம், நம்மளுக்கு கஷ்டம் கொடுக்குறவங்க திசைய கூட பார்க்க கூடாது. लेकिन एक चीज हम हमारे मन में ठान लेते हैं कि जो हमें दुख देता है उसकी ओर जीवन में कभी भी नहीं भटके हम. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कहता हूँ, உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகிங்க, जो तुम्हारे बैरी हैं उनसे प्रेम करो, உங்களை சபிக்கிறவங்களை ஆசீர்வதியுங்கள், जो तुम्हें श्रापित करते हैं उन्हें आशीष करो, உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள், जो भी तुम्हें बुरा करते हैं उनको भलाई करो, உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜெபம் பண்ணுங்கள், जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम्हें परेशान करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो. நம்மளுக்கு யாராவது நம்மளை நிந்திக்கிறாங்க துன்பப்படுத்துறாங்கன்னா முதல்ல ஆண்டவரே இவங்களை ஆசீர்வதிங்கன்னு ஆண்டவர் கையில அவங்கள கொடுத்து நம்ம ஜெபம் பண்ணணுமா. So यदि हमें कोई निंदा करता है या हमें कोई सताता है तो सबसे पहला कि हे प्रभु इन्हें आशीष कर करके परमेश्वर के हाथों में इनको सुपुर्द कर देना है. ஆண்டவர் சொல்றாரு, இப்படி செய்வதனால் நீங்கள் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவுக்கு புத்திரராய் இருப்பீர்கள். यदि आप इस प्रकार करोगे जैसा वचन में लिखा है तो आप स्वर्ग में जो पिता परमेश्वर है उनके पुत्र इस धरती में ठहरोगे. அவர் தீயோர் மேலும் நல்லோர் மேலும் क्योंकि वो धर्मी और अधर्मी के ऊपर தமது சூரியனை உதிக்க பண்ணி वो अपने सूरज को उगाता है நீதி உள்ளவர்கள் மேலும் और धर्मी के ऊपर அநீதி உள்ளவர்கள் மேலும் धर्मी और अधर्मी के ऊपर மழையை பெய்ய वो பண்ணுகிறார். मेह को बरसाता है. நம்ம இயேசு கிறிஸ்து மூலமா பிதாவோட ஸ்வீகார புத்திரர்களா இருக்கிறோம். हम यीशु मसीह के द्वारा हम पिता के हम संतान कहलाए गए हैं. ஏசப்பா நம்மளுக்காக ரத்தம் சிந்தி நம்ம பாவங்களை மன்னிச்சு சிலுவையில பிராயசித்தம் பண்ணி மரித்து 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழுந்திருக்கிறார். சத்தியம் கிறிஸ்தவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். यीशु मसीह जो है स्वर्ग से धरती में मनुष्य के रूप में आकर हमारे पाप के लिए कलवारी क्रूस में अपने लहू को बहाकर हमारे पाप का दंड मृत्यु को चखकर मारे जाकर गाड़े जाकर वो तीसरे दिन जीवित हो उठे. ये हर एक मसीह इस सत्य को भली भांति जानते हैं. எல்லாருக்கும் தெரியும். हम सबको मालूम है. ஆனா ஆண்டவர் என்ன விரும்புறாருன்னா, लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? அது மூளையில இல்லாம இருதயத்துல இருக்கணும்னு. सो परमेश्वर ये चाहते हैं कि वो उनके दिमाग में न रहे परंतु वो हृदय में बसा रहे वो बात. நம்ம பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்வீகார பிள்ளைங்க இயேசு மசீஹ்னால இந்த அனுகிரகம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. हम पिता परमेश्वर के लेपा लपक के पुत्र हम यीशु मसीह के द्वारा हमको ये भाग्य नसीब हुआ है. मत्ती 18:19 मत्ती की किताब में 18वें अध्याय का 19वां वचन. உங்களில் 2 பேர் தாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளப் போகிற எந்த காரியத்தை குறித்தாலும் பூமியிலே ஒருமனப்பட்டிருந்தால் பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவினால் அது அவர்களுக்கு உண்டாகும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். मत्ती की किताब में 18वें अध्याय के 19वें वचन में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी. ஒரு மனம், एक मन. நம்ம பிள்ளைகளோடே சில சமயம் ஒரு மனமாக முடியாது. कभी कभार हम अपने बच्चों के साथ में ही एक मन नहीं हो पाते.
ஹஸ்பண்டோட முடியாது, पति के साथ में नहीं हो पाते, மாமியார் மாமனார்னா கேட்கவே या வேண்டாம். सास ससुर के साथ में अगर बोले तो वो तो सवाल ही नहीं उठता है। ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு ஒருமனப்படணும். लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि एक मन होना है। ஒருமனப்பட்டு ஜெபம் பண்ணீங்கன்னா यदि एक मन होकर के अभी प्रार्थना करोगे, என் பிதாவினால அது அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாரு. सो मेरे पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगा करके कहते हैं। என்னன்னா 2 பேராவது 3 பேராவது என் நாமத்திலே எங்கே கூடியிருக்கிறார்களோ அங்கே அவர்கள் நடுவுல இருக்கிறேங்கிறாரு. क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ करके परमेश्वर ने वाचा किया है। அதனால इसीलिए ஒருமனப்பட்டு ஜெபம் பண்ணணும். इसी के लिए हमें एक मन होकर के प्रार्थना करना है। கார்ப்பரேட் பிரேயர் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க சபையிலே தான் கூடி நம்ம ஜெபிக்கணும். हम ये इकट्ठा जो प्रार्थना है, हम सबको, हम जिन जिन को जानते हैं उन सबको इकट्ठा करके हमें प्रार्थना करना है। கடவுள் வந்து ஜெபிக்கும் போது இந்த சுபாவம் நம்மளுக்கு வேணும்னு விரும்புறாரு. அது என்ன சுபாவம் தெரியுமா? ये परमेश्वर जो है प्रार्थना करते समय इस प्रकार का स्वभाव हमारे अंदर हो करके परमेश्वर इच्छा करता है। जानते हो कौन सा स्वभाव है? மார்க் 11 मरकुस के किताब में 11वें अध्याय में 25-26 25 और 26, मरकुस 11वें अध्याय का 25 और 26। நீங்கள் நின்று ஜெபம் பண்ணும்போது ஒருவன் பேரில் உங்களுக்கு யாதொரு குறை உண்டாயிருக்குமானால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களை உங்களுக்கு மன்னிக்கும்படி அந்த குறையை அவனுக்கு மன்னியுங்கள். நீங்கள் மன்னியாதிருப்பீர்களானால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவும் உங்கள் தப்பிதங்களை மன்னியாதிருப்பார் என்றார். और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। நம்மளுக்கு ஒருத்தவங்க நிறைய கஷ்டம் கொடுத்தாங்கன்னா, यदि हमको कोई बहुत दुख देता है, அவங்கள அந்த குறையோட போய் மன்னிக்காம போய் ஆண்டவர்கிட்ட போய் ஜெபம் பண்ணக்கூடாதாம். सो वो जो दुख दिए हैं, वो हमारे अंदर जो कमी है, वो दुख है, उसको उसके साथ में हम परमेश्वर के पास में जाकर के हम कभी प्रार्थना न करें। நம்ம எல்லாரையும் மன்னிக்கணும்னு ஆண்டவர் விரும்புறாரு. परमेश्वर चाहता है कि हम सबको क्षमा करें। நம்ம யாரையாவது மன்னிக்கும் போது जब हम किसी को क्षमा करते हैं, அதுதாங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கிற பெரிய தண்டனை. यही उनको दिया जा रहा बड़ा दंड है। இதனால நம்ம மன்னிக்கணும், அப்புறம் தான் ஜெபத்துக்கு போகணும். ये इसीलिए हमें पहले क्षमा करना है और फिर जाकर के हमें प्रार्थना में लगे रहना है। ஆண்டவரோட சீஷர்கள ஒருவன் வந்து பேதுரு. परमेश्वर के शिष्यों में एक का नाम था पतरस। இயேசு வந்து இந்த உபதேசங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு. यीशु ने उस पतरस को ये सारे प्रकार के बातों को सिखाया। பத்ரஸ்க்கு வந்து இது ரொம்ப கடினமா இருந்தது. पतरस को ये बात बड़ा कठिन था, அவன் ரொம்ப முரட்டு சுபாவம் உள்ளவன். क्योंकि वो थोड़ा सा वो गुस्सेल तरीके का व्यक्ति था। சரி, ஆனா நம்ம தலைவர் வந்து சொல்றாரு மன்னிக்கணும்னு. तो लेकिन फिर भी पतरस के अंदर ये था कि मेरा जो अगुवा है वो कहता है कि सबको क्षमा कर करके। அப்போ அவன் கேட்டான், சரி ஆண்டவரே மன்னிச்சிடலாம், ஒரு 7 தடவை மன்னிச்சிடவா அப்படின்னு கேட்டான். तो वो अपने अगुवे को यानी अर्थात यीशु मसीह को कहते हैं, ठीक है प्रभु, क्षमा करना है, ठीक है, क्या मैं मेरे बैरी को क्या मैं 7 बार क्षमा करूं? அவன் நினைச்சான், அப்பா 7 தடவைங்கிறது ரொம்ப பெரிய காரியம். वो पतरस के मन में ये था कि 7 बार बोले तो बहुत बड़ा बात है, அவன் உடம்பெல்லாம் ரொம்ப कंट्रोल பண்ணணும், திருப்பி अடிக்காம இருக்கிறதுக்கு. क्योंकि वो अपने शरीर को बड़े तरीके से वश में रखना है ताकि वो किसी को जो उसे दुख दिया है उसके ऊपर हाथ न उठाए। அதனால கேட்டான், 7 தடவை மன்னிச்சிடுறேன் ஆண்டவரே. तो अपने अगुवे को अर्थात यीशु को कहता है कि ठीक है प्रभु, मैं 7 बार उस व्यक्ति को मैं क्षमा कर देता हूँ। 8வது தடவை பாவம் பண்ணானா போட்டு வச்சிடுறேன். लेकिन अगर उसने 8वें बार किया तो फिर बाद में उसके लेने के देने कर दूंगा मैं, அப்படின்னு மனசுல நினைச்சான். ऐसा मन में वो सोच रहा था। ஆனா ஆண்டவர் என்ன தெரியுமா சொன்னாரு? लेकिन जानते हो प्रभु यीशु ने क्या कहा उसे? 7 தடவை இல்லப்பா, ये 7 बार नहीं भाई, 770 தடவை, 770 दफे तुझे उसे माफ करना होगा।
கடவுளோட உபதேசம் இதுதான். यही है परमेश्वर का हमारे लिए उपदेश। ஒருத்தன் கிட்ட 10,000 தாளந்து கடன் வாங்கினானா ஒருத்தன். एक व्यक्ति था जो करीबन 16,000 तलांत जो है उसने वो उधार लिया था கொடுக்க முடியல. और वो वापस उसे नहीं दे सका। அப்ப என்ன பண்ணானா, அந்த ராஜா கிட்ட போய் ரொம்ப கெஞ்சினானா, என்னை விட்டுருங்க. तो वो राजा के पास में खबर पहुंच जाता है, मुकदमा पहुंच जाता है, तो राजा के पास में जाकर के वो गिड़गिड़ाता है कि भाई मुझे क्षमा कर दो। அந்த காலத்துல கடனை கொடுக்கலனா பண்டாட்டி பிள்ளைகள் எல்லாம் வச்சுப்பாங்க வேலை செய்யறதுக்கு, So, அடிமையா வச்சுப்பாங்க. उन बाइबल के दिनों में यदि एक व्यक्ति अपने उधार को अगर भर नहीं सकता है तो उस व्यक्ति के साथ साथ में उसकी पत्नी और उसके बच्चों को लोग बंधुआई बना देते थे, बंधुए के रूप में उसे इस्तेमाल कर देते थे। அந்த ராஜா மன்னிச்சிட்டாரு. तो वो राजा जिसके पास में मुकदमा गया था, उस राजा ने इस भाई के सारे उधार को क्षमा कर दिया। வர்ற வழியில लेकिन वो राजा उस मुकदमा से आते समय रास्ते में அந்த ஆள் வந்து ஒருத்தனுக்கு 100 வெள்ளி பணம் கடன் கொடுத்திருந்தானா. तो वो व्यक्ति ने एक व्यक्ति को 100 चांदी के सिक्के जो है वो उधार दिए थे। அவன் சொல்றான் என்னால கொடுக்க முடியலன்னு கெஞ்சறான். तो वो जैसे रास्ते में मिला तो उस व्यक्ति से कहने लगे कि भाई मुझे क्षमा करो, मैं आपको पैसा लौटा नहीं सकता हूँ, तो मुझे क्षमा करो। 10,000 தாளந்து கடன் வாங்கி ஒண்ணும் இல்ல, ரைட்டா பண்ணிட்டு வந்திருக்கான். सो 16,000 जो पैसा है वो उसके जीवन से क्षमा हो चुका था, वो व्यक्ति वापस लौट रहा है இவன் 100 வெள்ளி காசை மன்னிக்க மனசு வரல. और सामने वाले ने इसे 100 चांदी के सिक्के उधार लिए थे, वो दे नहीं पा रहा था, लेकिन उसको क्षमा नहीं कर पा रहा है। அவன் சொன்னா அதெல்லாம் முடியாது. वो जो 16,000 जिसके क्षमा हुए थे वो बोलता कि भाई कुछ नहीं भैया, ये सब कुछ नहीं चलेगा, मुझे எல்லாரும் வந்துருங்க, நான் எனக்கிட்ட அடிமையா இருங்க. तो वो कहने लगा कि भाई ठीक है भैया, तू नहीं दे सकता 100, तो तू, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे सब लोग मेरे अधीन में आ जाओ, मैं तुम्हें बंधुए के रूप में इस्तेमाल करूंगा। இவன் என்ன பண்ணா, 100 வெள்ளி காசுக்காக கஷ்டப்படுத்தினான். तो ये 100 चांदी के सिक्के के लिए उसने उस व्यक्ति को दुख देना शुरुआत किया। இத போய் அந்த ராஜா கிட்ட போய் சொல்லிட்டாங்க எல்லாம். तो ये बात जो है उस राजा को जाकर के किसी ने बता दिया। ராஜா கூப்பிட்டு राजा ने उस 16,000 क्षमा किए हुए उस व्यक्ति को बुलाया। உனக்கு எவ்வளவு நான் வந்து மன்னிச்சேன், तुझे तो मैंने कितना क्षमा किया, இந்த சின்ன அமௌண்ட் உன்னால மன்னிக்க ये முடியலையா? छोटा सा जो पैसा है ये तुझे क्षमा नहीं कर सका, உனக்கு மன்னிப்பு கிடையாது. तुझे क्षमा बिल्कुल नहीं है। நீ அவனை என்னென்ன பண்ணியா அதெல்லாம் வா, நீ உனக்கு இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு. जो कुछ भी तूने उस 100 सिक्के को 100 सिक्के देने वाले को किया वो सब तुझे भी है। आज तू, तेरे पत्नी और तेरे बच्चे बंधुए के रूप में आ जा। ஏசப்பா இத ஓமையா சொன்னாரு. यीशु मसीह ने ये हमें दृष्टांत के रूप में हमें बताया है। எனக்கெல்லாம் யாரையாவது மன்னிக்கவே முடியலன்னா, यदि मुझे मैं अपने नहीं पाती हूँ, அப்ப ஆண்டவர் எனக்கு ஞாபகப்படுத்துவாரு, உன்னை நான் எப்படி மன்னிச்சேன், நீ எவ்வளவோ பண்ணியிருக்க, உன்னையவே மன்னிச்சிட்டேனே, உன்னால ஏன் மன்னிக்க முடியல तो அப்படின்னு. प्रभु यीशु मुझे याद दिलाते हैं कि भाई मैंने तो तेरे कितने पाप क्षमा किए, तो तू इनके छोटे से गलती को तो क्षमा नहीं कर सकती है क्या? ஒரு நாள் நான் ஒருத்தர் வந்து ஒரு சொன்னதை வந்து செய்யல, ஒரே கோபம். அதோட நான் வந்து குளிக்க போனேன், குளிச்சிட்டு இருந்தேன். एक दिन एक व्यक्ति जो आया था जिसको मैंने कुछ काम करने को कहा था, वो कर नहीं पाया, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था और उसके साथ साथ में मेरे नहाने का समय हुआ था, मैं नहाने के लिए चली गई। மனசு ஃபுல்லா கோபம், मेरे मन पर एकदम गुस्सा था। இப்ப வெளில வந்து அந்த ஆளை பார்த்தா என்னென்ன திட்டலாம், तो बाहर आकर के वो व्यक्ति अगर दिखाई दे तो उसको मैं क्या क्या बोलूं, அப்படி ஒரு எரிச்சல், அப்படி ஒரு கோபம். इतना मेरे अंदर गुस्सा था, इतना मेरे अंदर एकदम आग सा भरा हुआ था। ஆனா ஆண்டவர் அந்த 5 நிமிஷத்துல, लेकिन प्रभु यीशु ने उस 5 मिनट में எனக்கு வந்து சொன்னாரு, मुझे उन्होंने बताया, உன்னைய நான் எவ்வளவு மன்னிச்சிருக்கேன், तुझे मैंने कितना क्षमा किया, இது ஒரு சின்ன காரியத்துல உனக்கு வந்து அந்த மகனை மன்னிக்க முடியலையா? ये छोटे से काम में तू उस व्यक्ति को तो क्षमा नहीं कर सकता है? இந்த வேலை அந்த பையன் தான் செய்யணுமா, அவன் தான் செய்யணுமா, ஏன் நீ செய்யக்கூடாது? क्या ये काम को वही व्यक्ति करना है? क्या ये काम को तू नहीं कर सकती? அப்படியே சாந்தமா வெளியில வந்தேன்.
तो वो शांत होकर के मैं बाहर आई, அப்படி மறந்துட்டேன். तो मैं भूल गई। இப்படிதான் ஆண்டவர் ஒவ்வொருவரையும் நடத்துறாரு. ये यही तरीका है परमेश्वर अपने बच्चों को चलाने का। நம்ம மன்னிச்சிடணும். हमें क्षमा करना है। கடவுளே நம்மள மன்னிச்சிட்டாரு. परमेश्वर स्वयं हमें क्षमा किया है। நம்ம மன்னிக்க மாட்டேன்னா तो यदि हम क्षमा न करें तो நான் ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் நான் ப்ரே பண்றேன். सो मैं एक दिन में 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करती हूँ। ஆனா ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் கொடுக்கறவங்கள लेकिन मुझे जो थोड़ा सा दुख देते हैं उनको மனசுல வந்து இவங்க ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடணும். मन में हम सोचते हैं कि भाई ये कहीं का ना रहे, இவங்க எப்படி நல்லா இருப்பாங்க, ये कैसा अच्छे रहेंगे। அப்படி இருந்தோம்னா அந்த ஜெபம் கேட்கப்படாதான். तो हमारी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर सुनेगा नहीं। இன்னொன்னு சொல்றாரு ஆண்டவர். और एक चीज परमेश्वर कहते हैं, நீதிமொழிகள் नीति वचन 28:9 28वें अध्याय का 9वां वचन, नीति वचन 28 का 9। வேதத்தை கேளாதபடி தன் செவியை விலக்குகிறவனுடைய ஜெபம் அருவருப்பானது. परमेश्वर का वचन नीति वचन की किताब में 28वें अध्याय का 9वां वचन कहता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, சில பேருக்கு வசனம் கேட்கறதே பிடிக்காது. आप देखे होंगे कुछ लोगों को वचन सुनना पसंद ही नहीं होता है। வசனம் சொல்லும்போது தான் தூக்கம் வரும். वचन सुनते समय उन्हें नींद आएगा, உள்ளே போகாது, उनके अंदर ही नहीं जाएगा, விருப்பமே இருக்காது. इच्छा ही नहीं होती है वचन को सुनने का। அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, வேதத்தை கேட்காதபடி உன் செவியை விலக்காத. इसी के लिए परमेश्वर कहता है कि भाई वचन को न सुनने जैसा तू अपने आत्मा को मत तैयार कर। நீதிமொழிகள் 15:8 नीति वचन 15वें अध्याय का 8वां वचन। துன்மார்க்கனுடைய பலி கர்த்தருக்கு அருவருப்பானது, செம்மையானவர்களின் ஜெபமோ அவருக்கு பிரியம். परमेश्वर का वचन नीति वचन 15 का 8 में कहता है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। நான் ஒரு சாட்சி வந்து கேட்டிருக்கேன், அதை வந்து இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். मैंने एक गवाही को सुना है, वो आपको मैं आपके सामने उसे मैं बताने वाली हूँ। ஒரு பாஸ்டர் ஒரு கிராமத்துல ஆண்டவரை பத்தி சொல்றதுக்காக போயிருந்தாரு. एक पासवान जो है परमेश्वर के सुसमाचार को एक गांव में बताने के लिए गए थे। அங்க நிறைய குண்டாஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க. वहाँ पे बहुत से गुंडा लोग थे। கடவுள் மேல கடவுளே தெரியாது அவங்களுக்கு. उनको तो परमेश्वर के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं था। அந்த கிராமம் ரொம்ப பஞ்சம், மழையே இல்ல. और वो जो गांव जो था वो अकाल के जैसा स्थिति में था, और वहाँ पे बारिश ही नहीं होता था। அவங்க இந்த பாஸ்டரை பிடிச்சிட்டு வந்து சொன்னாங்க, நீ ஜெபம் பண்றேல்ல, ஜெபம் பண்ணி மழை வரணும் 3 நாளைக்குள்ள. सो उन गुंडों ने उस पासवान को जब वो गांव गए थे तो उस पासवान को पकड़ के लाए, और सब लोग घेर करके उसे कहने लगे कि तू प्रार्थना करता है ना, सुन, तू प्रार्थना करेगा, तू प्रार्थना करते बराबर 3 दिन के अंदर इस गांव के अंदर बारिश होना चाहिए। इल्लटी नाங்க என்ன பண்ணுவோம் தெரியாது। ध्यान में रखना, अगर बारिश नहीं हुआ तो ध्यान में रखना कि क्या होता है। பாஸ்டர் வந்து ஜெபம் பண்ணாரு ஆண்டவர்ட்ட. सो पासवान ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। அதாவது ரொம்ப திகிலு, பயம், அந்த கிராமத்துல ஊழியமும் செய்ய முடியாது, உயிரும் இருக்காது. उस गांव में सेविका करने के लिए बड़ा भय था, क्योंकि अगर उस गांव में हम सीधे तरीके से सेविका कर ही नहीं सकते। ஜெபம் பண்ணும்போது ஒரு நாள் ஆச்சு, மழையே வரல. तो पासवान प्रार्थना करने लगे। पहले दिन प्रार्थना किया, बारिश नहीं हुआ। ரெண்டாவது நாளும் இல்ல। दूसरा दिन प्रार्थना किया, बारिश नहीं हुआ। இன்னொரு நாள் தான் இருக்கு। और एक ही दिन बचा हुआ है। எல்லாம் கத்தி கபடா எல்லாம் வச்சிட்டு இருக்கானுங்க இவரை அடிக்கிறதுக்கு। सब लोग अपने हाथों में तलवार और बड़े बड़े चॉपर सब लेकर के खड़े थे कि भाई इसको आज मार दे। அப்ப கடவுள் வந்து சொன்னாரு, तो परमेश्वर ने उनसे उस पासवान से बात किया, இங்க ஒருத்தன் செருப்பு தைக்கிறான்ப்பா। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो मोची कहलाता है, वो चप्पल सीखता है।
அவன் ஜெபம் பண்ணா நான் உடனே மழையை கொடுத்துருவேன். तो यदि वो व्यक्ति अगर प्रार्थना करेगा तो मैं तुरंत इस प्रार्थना का उत्तर दूंगा। பாஸ்டர் போனாரு. तो पासवान चले गए उस मोची को देखने के அந்த लिए। ஆளுக்கு ஒரு கண்ணே கிடையாது. तो वो मोची जो था उसका एक आंख नहीं था। அப்போ என்னன்னு கேட்கும்போது तो क्या है करके पूछने के समय அவன் அவருக்கு தெரிஞ்சது तो उसे पता चला, ஒரு அழகான பொண்ணு வந்து செருப்பு தைக்க வந்தாளாம். तो उस पासवान को पता चला कि एक दिन मोची जो है अपने काम करते समय एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो है चप्पल सिलने के लिए उसके पास में आई। பாதத்தை பார்த்துட்டே அவனுக்கு அப்படியே மோகம் வந்துருச்சான். सो उस खूबसूरत लड़की के पैर को देखते ही बराबर उसके हृदय में एक इच्छा जागृत हुई। அப்படியே ஒரே இச்சையோட அவன் செருப்புலாம் தைச்சு கொடுத்தானா. तो उस इच्छे के साथ में ही उसने उस खूबसूरत लड़की के उस चप्पल को सी करके दे दिया। ஒரு அன்னைக்கு வந்து அவன் ஒரு வசனம் கேட்டானா. तो उस दिन वो मोची ने एक वचन को सुना, நீ ரெண்டு கண்ணை வச்சுக்கிட்டு तू दो आंखें रखकर பாவம் விபச்சாரம் பண்ணி पाप और व्यभिचार कर कर நீ நரகத்துக்கு போறதுக்கு பதிலா तू नरक में जाने के बजाय ஒரு கண்ணை வச்சுக்கிட்டு சொர்க்கத்துக்கு வரலாம். तो एक आंख से तू स्वर्ग आ सकता है। இந்த வசனம் கேட்டாரு. तो ये इस सीख को उसने सुना। அப்படியே அவருக்கு இவர்கிட்ட அந்த பொண்ணு வந்து செருப்பு தைக்க தானே வந்தது. तो ये मोची के पास में वो खूबसूरत लड़की केवल चप्पल सिलने के लिए ही तो आई थी। சோ நம்ம வந்து பண்ணது ரொம்ப பெரிய பாவம். तो अब मैंने जो किया है ये बहुत बड़ा पाप है करके उसको समझ में आया। ஒரு கண்ணையே எடுத்துட்டாராம். तो उसने अपने एक आंख को अपने ही हाथों से निकाल दिया। இந்த மாதிரி வாழ்ந்தவங்கலாம் இருக்காங்க सो உலகத்துல. इस प्रकार के परमेश्वर के लिए जिए हुए लोग इस संसार में हैं। ஆனா ஆண்டவர் எல்லாரையும் பார்க்கறாரு. परमेश्वर सबके ऊपर नजर रखा हुआ है। நம்ம மனுஷங்க பார்வையில இது செருப்பு தைக்கிறவன், परमेश्वर के मनुष्यों के नजरों में हम लोग कि भैया ये व्यक्ति जो है वो चप्पल सीता है, ஆனா ஆண்டவர் பார்வையில அவன் செம்மையானவன். लेकिन परमेश्वर के नजरों में वो एकदम उत्तम है। இந்த பாஸ்டர் போய் சொன்னாரு, நீ ஜெபம் பண்ணுப்பா மழை வரணும்னு தான் கஷ்டத்தை சொன்னாரு. இந்த மாதிரி பண்றாங்க, ஜெபம் பண்ணு வாண்டு. सो पासवान जाकर के उस मोची के पास में जाकर के कहने लगा, अपनी समस्या को कहने लगा कि भाई ऐसा ऐसा बात है, उस गांव में बारिश नहीं होता है, लेकिन आप अगर प्रार्थना करोगे तो बारिश हो जाएगा। ये समस्या को उसने जाकर के मोची से कहा। அவன் ஜெபம் பண்ணான். तो उसने छोटा सा प्रार्थना किया। உடனே பெரிய மழை. जैसे ही मोची ने प्रार्थना किया उसी घड़ी में बहुत बड़ा बारिश उस गांव में हो गया। கடவுள் வந்து செம்மையானவர்களுடைய ஜெபத்தை கேட்கிறாரு. परमेश्वर जो है उत्तम लोगों की प्रार्थना को सुनता है। நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பரிசு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அது என்னன்னு தெரியுமா நம்மளுக்கு? आपको मालूम है हम सब लोगों को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। जानते हो वो क्या है? இயேசு நாமம். यीशु मसीह का नाम। யோவன்னா 14:14. यदि आप यूहन्ना की किताब में 14वें अध्याय का 14 वचन को आप पढ़ोगे, என் நாமத்தினால் நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன். परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे नाम से तुम जो कुछ भी मांगोगे, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। நம்ம இயேசு நாமத்தினால பிதாவாகிய தேவனுக்கிட்ட போறோம். हम यीशु के नाम ही के द्वारा हम पिता परमेश्वर के पास में जाते हैं। यार நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, யார் பேரையாவது நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுமா? हम सोच के देखें कि क्या हम किसी का भी नाम हमारे प्रार्थना में हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? நம்ம பிரதம மந்திரி, முக்கிய மந்திரிலாம் இருக்கிறாங்க, சீஃப் மினிஸ்டர், அவங்க பேரை சொல்லிட்டு எங்கேயாவது போனா என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க அனுப்பினாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேரை சொல்லிட்டு போனா என்ன ஆகும்? நம்ம ஜெயிலுக்கு தான் போகணும். सो सोच के देखो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री का नाम अगर हम लेकर के कोई काम लेंगे तो क्या होगा? हम उनका नाम लेंगे तो हमें जेल में डाल देंगे। ஆனா இயேசு என்ன பண்ணிட்டாரு? தான் நாமத்தை நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாரு. लेकिन यीशु ने अपने नाम को
हमें दे दिया है। பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்னாடி நம்மள நிக்கவே முடியாது. पिता परमेश्वर के सामने हम खड़े भी नहीं हो सकते, ஆனா இயேசு நாமத்துல போகும்போது लेकिन जब हम यीशु के नाम से उनके पास में जाते हैं, என் மகன் இவங்களுக்காக ரத்தம் சிந்திருக்கான் ये मेरे बेटे ने इनके लिए लहू बहाया है, அப்படின்னு தான் மகனுடைய விலையேறப்பட்ட ரத்தத்தை பார்க்கறாரு நம்ம ஜீவனுக்கு तो மேல. हमारे जीवन के ऊपर वो अपने बेटे का वो बहुमूल्य लहू को देखता है, அப்படியே மனசு உருகிடுறாரு. तो उनके मन हमारे ऊपर जो गुस्सा था वो सब निकाल करके एकदम पिघल जाता है, அதனால दयावंत हो जाता है। இயேசு நாமத்துல நம்ம ஜெபிக்கணும். इसी के लिए हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करना है, பிதா கிட்ட ஜெபிக்கணும். पिता से प्रार्थना करना है। பிலிப்பியன்ஸ் 2:10-11 फिलिपियों की किताब में दूसरे अध्याय में 10 और 11। இயேசுவின் நாமத்தில் வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழானோருடைய முழங்கால் யாவும் முடங்கும்படிக்கும் பிதாவாகிய தேவனுக்கு மகிமையாக இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தர் என்று நாவுகள் யாவும் அறிக்கை பண்ணும்படிக்கும் எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமத்தை அவருக்கு தந்தருளினார். कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। இந்த உலகம் ஃபுல்லா 3 பார்ட்டா இருக்கு. ये संसार सब 3 भागों में बांटा गया है। மேல வந்து சொர்க்கராஜ்யம், ऊपर स्वर्ग है, நம்ம இருக்கிற பூமி, हम जो रहते हैं वो भूमि है, கீழே வந்து பாதாளம். नीचे जो है वो पाताल है। 3 உலகத்துல இருக்கிறவங்களும் ये तीनों लोगों में, तीनों भागों में रहने वाले लोग என்ன பண்ணுவாங்களாம்? वो क्या करेंगे இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தர், कि यीशु ही प्रभु है, இயேசுதான் பெரியவர் यीशु ही बड़े हैं। அப்படின்னு முழங்கால் போட்டுருவாங்களாம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, எனக்கு ஒன்றும் அதிகாரம் கிடையாது, இயேசு நாமத்துக்கு முன்னாடி நான் தூசி. तो वो तुरंत यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है बोल करके घुटने टेक देंगे। उसका अर्थ ये है कि मुझे कोई अधिकार नहीं है, मैं तो एकदम मिट्टी के समान हूँ। அப்படி பயப்படுவாங்களாம். ऐसे भयभीत रहते हैं। நானே சர்ச்சில் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன், ரொம்ப பிசாசு பிடிச்சு வருவாங்க. मैंने कलीसिया में देखा है कि बहुत से शैतान के बंधन से लोग आते हैं, ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தும். அந்த உள்ள இருக்கிற ஆவி வந்து அவங்கள ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தும். वो अंदर जो शैतान की समस्या से शैतान की आत्मा जो होती है वो उस मनुष्यों को बहुत सताते हैं। ஆனா பாஸ்டர் வந்து இயேசு நாமத்தை சொல்லும்போது அப்படியே நடுங்கி அது ஓடி போயிடும். लेकिन पासवान यीशु के नाम जब लेते हैं तो वो भयभीत होकर के उस शरीर को छोड़ करके निकल जाते हैं, ஏன்னா எல்லாவற்றுக்கும் மேலான நாமம் அவருக்கு இருக்கு. क्योंकि वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ कर दिया गया है। यीशु ये नाम सब नामों में श्रेष्ठ कर दिया गया है। எபேசியர் 1:20 इफिसियों की किताब में पहले अध्याय का 20वां वचन। எல்லா துரைத்தனத்துக்கும் அதிகாரத்துக்கும் வல்லமைக்கும் கர்த்தத்துவத்துக்கும் இம்மையில் மாத்திரமல்ல மறுமையிலும் பேர் பட்டிருக்கும் எல்லா நாமத்துக்கு மேலாக அவர் உயர்ந்திருக்கத்தக்கதாக जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोग में भी लिया जाएगा बैठाया। ஸோ நம்மளுக்கு இயேசு நாமம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. इसी के लिए हमको यीशु ये नाम दिया गया है। அது சாதாரண இல்ல. ये साधा नाम नहीं है। 3 உலகத்திலையும் ये तीनों लोगों में எல்லாருமே நடுங்குற நாமம், सब लोग उस नाम से भयभीत होते हैं। வல்லமை உள்ள நாமம். ये सामर्थी नाम है। அதை சொல்லி நம்ம ஜெபிக்கும் போது ये बोल करके जब हम प्रार्थना करते हैं பாருங்க, அப்ப நம்மளுக்கு எப்படி நம்ம ஜெபங்கள் तो கேட்கப்படும். सोच के देखो कि हमें हमारे प्रार्थना को किस प्रकार से उत्तर मिलेगा, ஆண்டவரே சொல்லி கொடுத்துட்டாரு. क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं इसे बोल दिया है। என் நாமத்தினால கேளுங்க. क्योंकि ये मेरे नाम से तुम मांगो। அடுத்தது दूसरा பரமண்டல ஜெபம். ये
जो हमारे स्वर्गीय प्रार्थना हम कहते हैं। இயேசு 12 சீஷர்களை செலக்ட் பண்ணி தன்னோட வச்சிருந்தாரு. यीशु मसीह जो है वो 12 चेलों को अपने काम को करने के लिए चुन करके अपने पास में रखे हुए थे। 3 வருஷம் அவரோடயே இருந்தாங்க. 3.5 साल जो है वो यीशु मसीह के साथ में ही रहा करते थे அப்படியே பிரமிச்சு போய் और बड़े एकदम यीशु मसीह के महिमा को देख करके एकदम आनंदित आए थे। என்னன்னா இவர் வாயை திறந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னா நோய் போயிடுது, செத்தவங்க பிழைக்கிறாங்க, கைய வச்சுட்டாலே சுகம் கிடைக்கிறது. क्योंकि ये अपने आंखों से देख रहे थे कि यदि यीशु अपनी मुंह खोल करके एक बात को कहे तो वैसा ही होते हुए देखते थे। बीमार चंगे हो जाते थे, शैतान भाग जाता था, मरे हुए लोग उठ खड़े हो जाते थे। எவ்வளவு அற்புதம், कितने चिन्ह चमत्कार। இயேசு போனாலே அந்த இடத்துல நிக்கவே இடம் இருக்காதாம், அவ்வளவு திரளான ஜனங்கள் வருவாங்க. जहाँ कहीं भी यीशु मसीह जाते थे वहाँ पे लोगों को खड़े रहने के लिए जगह नहीं होता था, इतने भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो जाता था। சுகம் பெற்றுக்க, लोग चंगे होने के लिए आते थे, உபதேசத்தை கேட்க, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आते थे, நிக்க கூட இடம் இருக்காதாம். वहाँ पे खड़े रहने तक के लिए जगह नहीं हुआ करता था। இவங்க பார்த்து பார்த்து என்னது இப்படி ஒரு அற்புதம். ये 3.5 साल में इन्होंने यीशु मसीह के साथ में रह करके इतने चिन्ह और चमत्कार देखे और सोचने लगे कि ये कैसा इतना चिन्ह और चमत्कार हो रहा है। பார்த்தா அவர் தனியா போயிடுவாராம், இரவு முழுசும் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருப்பாராம். और ये भी देखते थे कि भैया यीशु मसीह जो है वो अकेले में जाकर के प्रार्थना करने लगते थे, रात भर प्रार्थना करते थे। எப்ப பார் மலையில போய் ஏறி ஜெபம் பண்ணுவாராம். पर्वत में चले जाते थे और प्रार्थना करने लगते थे। இவங்களுக்கு நம்மளுக்கெல்லாம் பழைய வாழ்க்கையில ஜெபம்னா என்னன்னே தெரியாது இல்லையா? हम लोगों को हमारे मसीह में आने के पहले का जीवन हम अगर सोच के देखें तो हम लोग को प्रार्थना ये चीज हमको मालूम ही नहीं था। அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை ஆயிடுச்சு. लेकिन फिर बाद में वो चेले जो है अपने यीशु मसीह को देखते थे कि वो प्रार्थना करते थे और उनके चिन्ह चमत्कार के जीवन को देखते थे, तो उनके अंदर एक इच्छा जागृत हुई। நம்ம இயேசு இதெல்லாம் பண்றாரே, हमारे प्रभु यीशु इस प्रकार के काम करते हैं, நம்ம அவர்கிட்ட போய் கேட்கணும். आए हम लोग उसके पास में जाकर के पूछे, ஆண்டவரே प्रभु எங்களுக்கும் ஜெபம் பண்ண சொல்லித்தாங்க. हमें भी प्रार्थना करना सिखा। கடவுள் சொல்லி கொடுத்தாரு. और यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करना सिखाया। அது மத்தேயு 6ல ये मत्ती की किताब में 6 अध्याय में 9 ல இருந்து 13 வரைக்கும் 9 से लेकर 13 इस वचन में हम पढ़ते हैं। இது எல்லா ஜெபமுமே அடங்கிருச்சு. इसमें हमारे जीवन के सारी प्रार्थना इसी में है। பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, अतः உங்கள் நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்பட பண்ணாமல் தீமையிலிருந்து எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே. ஆமென். अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, यीशु मसीह ने सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। இது பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவரோட சித்தம் என்ன தெரியுமா? परमेश्वर की इच्छा क्या है जानते हो? ஒரு வசனம் எப்படி சொல்லுது? பிரியமானவளே, एक ஆத்மா வாழ்வது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமா இருக்க வேண்டுகிறேன். परमेश्वर का एक वचन कहता है कि हे प्रियो अब हम हे प्रियो जैसा तेरी आत्मा है वैसा ही सब प्रकार के आशीषों में तू भरा रहे। ये यूहन्ना 3 अध्याय के 2 वचन में हम कहते हैं, हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। நம்ம சுகமா வாழணும்,
எல்லாவற்றிலும் சுகமா இருக்கணுமா. हमें परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा जीवन सुखदायी हो, और ये इच्छा है कि हम सब बातों में सुखदायी हमारा जीवन रहे। கடவுள் வந்து நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாரு நம்மளுக்கு. परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ सीख दिया है। கொஞ்சம் வசனங்கள் தான் நம்ம தியானிச்சோம். थोड़ा ही वचन हमने आज ध्यान किया, இன்னும் ஒரு வசனம் एक और वचन के ऊपर हम ध्यान करेंगे। 1 கொரிந்தியோ 14:2. पहले कोरिन्थियों 14वें अध्याय का दूसरा वचन। ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு, மாம்சமான யாவர் மேலே என் ஆவியை ஊற்றுவேன். परमेश्वर का वचन कहता है, निकाल के पढ़ेंगे हम लोग पहले कोरिन्थियों की किताब में 14वें अध्याय का दूसरा वचन, क्योंकि जो மாம்சமான யாவர் மேலும், யோவேல்ல இருக்கு இந்த வசனம், மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன். परमेश्वर का वचन योएल नबी की किताब में कहा है कि जो भी शरीर रूपी हैं उनके ऊपर मैं मेरी आत्मा को उंडेलूंगा। இது நம்ம ஆண்டவர் பிள்ளையா ஆண்டவர் மேல விசுவாசம் வச்சு அன்பு கூறும்போது அவர் நம்மளுக்கு கொடுக்குற மிகப்பெரிய பரிசு. ये जब हम परमेश्वर के बच्चे बने हैं और परमेश्वर के ऊपर हम प्रेम करते हुए हमारा जीवन को बिताते हैं, तो परमेश्वर की ओर से उसके बच्चों को दिया गया ये उपहार है। கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக நமக்குள்ள இருக்கிறாராம். मसीह जो है वो महिमा के आशा से हमारे अंदर बसा हुआ है। நம்ம கேட்டோம்னா நம்மளுக்கு கட்டாயம் கிடைக்கும். यदि हम मांगेंगे तो अवश्य हमको मिलेगा। இதோட அடையாளம் என்னன்னா அந்நிய பாஷை பேசுறது. तो इसका भाषाएं बोलते हैं, जो ये परमेश्वर की ओर से उपहार को प्राप्त करता है, उसका बाहरी रूप से कैसे हम देख सकते हैं, वो है अन्य भाषाएं वो व्यक्ति बात करता है। இதுக்கு ஒண்ணே ஒண்ணுதான், ஆண்டவரை நேசிக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இது கிடைக்கும். ये एक ही चीज है कि परमेश्वर के ऊपर जो भी प्रेम रखते हैं उन सबको परमेश्वर उपहार के रूप में ये देता है। 1 கொரிந்தியர் 14:2 पहले कोरिन्थियों की किताब में 14वें अध्याय के दूसरा वचन, அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் ஆவியினாலே ரகசியங்களை பேசினாலும் அவன் பேசுகிறதை ஒருவரும் அறியாதிருக்கிறபடினால் அவன் மனுஷரிடத்தில் பேசாமல் தேவனிடத்தில் பேசுகிறான். क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। இது மூல சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது. ये हमारे बुद्धि से संबंध नहीं रखता, ஆவியில பேசுறது. ये आत्मा से बातें करता है। இது வந்து கடவுள் கொடுக்கிற பெரிய வெகுமதி. ये परमेश्वर की ओर से हमने प्राप्त किया बहुत बड़ा उपहार है। நிறைய வேளையில நம்ம என்ன பேசுறோம் நம்மளுக்கே எல்லாம் அர்த்தம்லாம் தெரியாது. சில பேருக்கு தான் இதோட வியாக்கியான வரங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது. बहुत से समय हम क्या बात करते हैं इसका हमें समझ नहीं रहता है। कुछ ही लोगों को परमेश्वर ने ये समझ दिया है और इसे हम प्रार्थना में प्राप्त कर सकते हैं। ஆண்டவர் யாருக்காவது ஜெபிக்க சொல்லுவாரு. परमेश्वर किसी के लिए प्रार्थना करने को कहेंगे, தேசத்துக்காக ஜெபிக்க சொல்லுவாரு. हो सकता है कि देशों के लिए प्रार्थना करने को कहेंगे, நம்முடைய ஆத்மாவுக்காக, हो सकता है कि अपने आत्मा के लिए हमें प्रार्थना करने को कहेंगे। இது நம்மளுக்கெல்லாம் புரியாது. ये हमें नहीं मालूम, ஆனா ஆவியினால ஜெபிக்கிறது, लेकिन हम आत्मा में होकर के जब प्रार्थना करते हैं, கடவுளோட ரகசியம் பேசுறோமா, परमेश्वर के साथ में हम रहस्य बात करते हैं। நிறைய நேரம் நம்மளுக்கு கொடுக்கிற சாக்கியங்கள் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கவே முடியல. बहुत से समय में परमेश्वर की ओर से जो उपहार के रूप में हमने प्राप्त किया है उसको हमें समझ में नहीं आता है, ஆனா சில சமயங்கள்ல நம்ம உணர்த்தப்படுகிறோம். लेकिन कुछ समय में जो भी अन्य भाषा जो हमें उपहार के रूप में दिया गया है वो हमें समझ में आता है எவ்வளவு பெரிய வெகுமதி எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்கப்பா. कि हम परमेश्वर को जब बोलते हैं कि प्रभु आपने कितना बड़ा उपहार हमारे लिए दिया है। பரிசுத்த ஆவிக்கு பேரே தேற்றரவாளன். सो पवित्र आत्मा का नाम ही है सहायक, நம்மளுக்கு உதவி செய்யறதுக்காக, हमें सहायता करने के लिए। சீஷர்கள்லாம் ஏசப்பா வந்து மரிச்சு உயிரோட எழுந்து
எல்லாருக்கும் தரிசனம் ஆனாரு, சீஷர்களுக்கும் கொஞ்சம் பேருக்கும் தரிசனம் ஆனாரு. यीशु मसीह जो है हमारे लिए आकर कलवारी क्रूस में मरकर जी उठने के बाद में बहुत से लोगों को उन्होंने अपने जी उठे हुए उस बात का दर्शन दिया और उनके चेलों को भी उन्होंने दर्शन दिया। அவரு மேல பிதா கிட்ட போற வேளை வந்துருது. जब उनको सब दर्शन देने के बाद में 40 दिन के पश्चात में जब पिता के पास में जाने का उनका समय आया, அவர் வந்து மரிச்சு உயிரோட எழுந்து 40 நாள் அளவும் அவங்களுக்கு தரிசனமா இருந்தாரு. सो मरकर जी उठने के 40 दिन तक वो अलग अलग लोगों को अलग अलग ठिकाने में वो अपने जी उठे का दर्शन दे रहा था। 40 நாள் 40 दिन எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு. सब कुछ उन्होंने सिखाया। அப்போ சொன்னாரு, நான் போகலைன்னா உங்களுக்கு வந்து பரிசுத்த ஆவியை நான் பிதா கிட்ட இருந்து அனுப்ப முடியாது. वो कहने लगे कि यदि मैं न जाऊं अब स्वर्ग में तो मैं पिता की ओर से जो तुम्हें पिता ने वाचा किया था पवित्र आत्मा देने का वो तुम्हें भेज नहीं सकता। நான் வந்து அவர் சொன்னாரு, என்னை பார்க்கறப்ப தான் நான் உங்களோட இருப்பேன். मैं जब तुम मुझे देखते हो तब मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, ஆவியானவர் எப்பவுமே உங்களோட இருப்பாரு. लेकिन पवित्र आत्मा जो मैं तुम्हें स्वर्ग में जाकर के पिता की ओर से भेजूंगा वो तुम्हारे साथ में सदा सर्वदा बना रहेगा। நான் போறது உங்களுக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருக்கும். मैं स्वर्ग जाना तुम्हारे लिए बड़े आशीष का कारण है। ஆண்டவர் பாருங்க எவ்வளவு நல்ல ஆண்டவர். देखो हमारा प्रभु कितना अच्छा प्रभु है। அப்படியே சொன்னதை செஞ்சாரு. जो कुछ भी उन्होंने कहा वैसा ही किया। ஆண்டவர் சொல்றதை செஞ்சிரவர். परमेश्वर जो बोलते हैं वो करने वाले परमेश्वर हैं। நிறைய பேரை பார்க்குறோம் அந்நிய பாஷை பேசுறது ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு. हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग जो विश्वास से प्राप्त करते हैं पवित्र आत्मा वो अन्य अन्य भाषा बोलते हुए देखते हैं। இந்த ஜெபம் வந்து நம்ம கட்டாயம் பெற்றுக்கொள்ளணும். அந்நிய பாஷையில நம்ம ஜெபிக்கணும். ये अन्य भाषा की जो प्रार्थना है ये अवश्य हम जो विश्वासी हैं प्राप्त करें और अन्य भाषा में हम अवश्य प्रार्थना करते रहे। நம்ம என்ன பண்ணணும்? இனிமே இந்த ஜெபத்தை குறிச்ச வசனங்கள்லாம் தியானிச்சு तो हमें क्या करना है? तो ये प्रार्थना के जितने भी वचन हैं उन सबको हम पढ़े और ध्यान करें। ஜெபத்துல நம்ம வளரணும். हमें प्रार्थना में बढ़ना है। தேசத்துக்காக ஜெபிக்கணும். हमें देश के लिए प्रार्थना करना है। मुख्य मंत्री प्रथम मंत्री நம்மள ஆள்றவங்களுக்காக ஜெபிக்கணும். हमारे प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री हमारे जो अधिकारी हैं उन सब के लिए हमें प्रार्थना करना है। நம்ம வீட்டுக்காக ஜெபிக்கணும். हमारे घर के लिए हमें प्रार्थना करना है। பக்கத்து வீட்டுக்காக, पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करना है। நம்ம ஊருக்காக, हमारे जिस गांव में जिस शहर में रहते हैं उसके लिए हमें प्रार्थना करना நம்ம है। फ्रेंड्ஸ்க்காக, हमारे दोस्तों के लिए प्रार्थना करना है। ஆண்டவர் நம்மள எவ்வளோ என்கேஜ்டா வச்சிருக்காரு. परमेश्वर ने देखो हमें कितना व्यस्त रखा है। இது பண்ண நம்மளுக்கு சமாதானம் தான். ये जितना हम करते हैं उतना हमारे मन में शांति आती है। எவ்வளோ வேலை பண்ணாலும் हम चाहे कितना भी काम करें, அதனால ஒன்றும் பெரிய பெனிஃபிட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. जितना भी काम करें उससे हमें इतना ज्यादा लाभ नहीं होगा। வீட்டுக்கு வந்து நிம்மதியா தூங்கலாம். केवल इतना ही है कि थकान से आकर के घर में हम आराम से सो सकते हैं। சரீரத்துல வேலை பார்க்கறது, शरीर में काम करना கொஞ்ச நேரம், थोड़े ही देर के लिए है। ஒரு 8 மணி நேரம், हो सकता है 8 घंटे के लिए, इलाटी एक्स्ट्रा और महीने 2 महीने या हम अधिकांश और एक आध 2 घंटा और करें। நம்மளுக்கு ஜெபிக்கிறதுக்கு இத தவிர நிறைய நேரங்கள் இருக்கு. लेकिन प्रार्थना के लिए हमें इससे भी कहीं अधिक समय है। நம்ம வந்து ஜெபத்துல மனசு வைக்கணும். हमें प्रार्थना में मन लगाना है। ஜெபத்துல நம்ம வளரணும். प्रार्थना में हमें बढ़ना है। ஆண்டவர் சொல்ற எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும். परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें आशीष के तौर पर देने का वाचा किया है वो सब हम हथियाए। ஆண்டவர் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आप सबको आशीष